اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فضیلت محض خدا کی عنایت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت نماز، روزہ، صدقہ کی بنا پر نہیں بلکہ اس شے کی بنا پر ہے جو ان کے دل میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوسروں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ نماز بہت پڑھتے تھے اور روزے بہت رکھتے تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ ان پر عنایت ہے اور یہ ان کی محبت ہے۔ قیامت کے دن جب نمازوں کو لائیں گے تو انہیں ترازو میں رکھیں گے اور اسی طرح روزوں اور صدقات کو، لیکن جب محبت کو لائیں گے تو وہ ترازو میں نہیں سمائے گی۔ بس اصل چیز محبت ہے، اور جب تو اپنے آپ میں محبت دیکھے تو اسے بڑھا تاکہ وہ زیادہ ہو۔ جب تو اپنے آپ میں سرمایہ دیکھے اور وہ طلب ہے تو اس سرمایہ یعنی طلب کو بڑھا، کیونکہ حرکتوں میں برکت ہے، اور اگر تو اسے نہ بڑھائے گا تو سرمایہ تو اس سے جاتا رہے گا۔ تو زمین سے کم نہیں ہے، زمین کو حرکات سے اور کدال سے الٹ پلٹ کر متغیر کر دیتے ہیں اور وہ شک کر دیتی ہے، اور جب اسے ترک کر دیتے ہیں تو وہ سخت ہو جاتی ہے۔ بس جب تو اپنے آپ میں طلب دیکھے تو آ اور جا، اور یہ نہ کہہ کہ اس جانے میں کیا فائدہ ہے، تو جا، فائدہ خود ظاہر ہو جائے گا۔ کسی مرد کا دکان کی طرف جانا بغیر حاجت کے نہیں ہے۔ خدا تعالی روزی دیتا ہے، کیونکہ اگر وہ گھر میں بیٹھ جائے تو یہ استغنا کا دعویٰ ہے، روزی نہیں آئے گی۔ عجیب بات ہے کہ ماں اس بچے کو دودھ دیتی ہے جو روئے۔ اگر بچہ یہ خیال کرے کہ میرے اس رونے کا کیا فائدہ ہے اور رونا دودھ دینے کا موجب ہے تو دودھ سے رہ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبب سے اسے دودھ پہنچتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس رکوع اور سجود میں کیا فائدہ ہے اور میں یہ کیوں کروں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تو کسی امیر یا کسی رئیس کے سامنے اسی طرح حاضر ہوتا ہے، رکوع میں جاتا ہے اور تعظیم سے دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے، تو آخر وہ امیر تجھ پر رحم کرتا ہے اور تجھے روٹی کا ٹکڑا دیتا ہے۔ وہ چیز جو امیر میں رحم پیدا کرتی ہے امیر کا گوشت پوست نہیں ہے۔ مرنے کے بعد وہ گوشت اور پوست اپنی جگہ ہے اور خواب اور بے ہوشی میں بھی، لیکن اس کے سامنے اس گوشت اور پوست کی حاضری بے فائدہ ہے۔ بس ہم نے سمجھ لیا کہ امیر میں جو رحم ہے وہ نظر نہیں آتا اور دکھائی نہیں دیتا۔ بس جب ممکن ہے کہ گوشت پوست میں کسی چیز کی ہم خدمت کریں جو نظر نہیں آتی، تو گوشت اور پوست سے باہر بھی ممکن ہے، اور اگر وہ چیز جو گوشت اور پوست میں چھپی ہوئی ہے نہ ہوتی تو ابو جہل اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہوتے اور ان میں فرق نہ ہوتا۔ ظاہر کے اعتبار سے بہرے اور سننے والے کان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی جسم کا حصہ ہے اور وہ بھی، البتہ جو شنوا نہیں ہے اس میں پنہا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ بس اصل چیز وہ عنایت ہے۔ تو جو ایک امیر آدمی ہے، تیرے دو غلام ہیں، ایک نے تیری بہت خدمت کی اور تیری خاطر بہت سفر کیا، اور دوسرا خدمت کرنے میں کاہل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس خدمت کرنے والے کی نسبت تو کاہل غلام سے زیادہ محبت کرتا ہے، اگرچہ تو خدمت کرنے والے غلام کو ضائع نہیں کرتا، لیکن ایسا ہو جاتا ہے۔ عنایت پر حکم نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ دونوں بظاہر ایک ہیں۔ عجیب بات ہے، دائیں آنکھ کون سی خدمت کرتی ہے جو بائیں آنکھ نہیں کرتی، اور دایاں ہاتھ کیا کام کرتا ہے جو بایاں نہیں کرتا، اور اسی طرح دایاں پاؤں۔ لیکن عنایت دائیں آنکھ پر ہوئی، اور اسی طرح جمعہ نے باقی دنوں پر فضیلت پائی، کیونکہ خدا کے یہاں رزق مقسوم کے علاوہ اور بھی رزق ہے، اسے جمعہ کے روز طلب کرنا چاہیے۔ اب اس جمعہ نے کون سی خدمت کی جو دوسرے دنوں نے نہ کی؟ اصل بات یہ ہے کہ عنایت اس پر ہوئی اور یہ بزرگی اس سے مخصوص ہو گئی۔ اب اگر ایک اندھا کہے کہ مجھے اندھا پیدا کیا گیا ہے، میں معذور ہوں، تو اس کے یہ کہہ دینے سے کہ میں اندھا ہوں اور معذور ہوں فائدہ نہیں ہوتا، اور اس سے تکلیف دور نہیں ہوتی۔ یہ کافر جو کفر دکھ کی حالت میں ہے، آخر کفر کی تکلیف میں ہے،
और फिर जब हम नजर करते हैं तो वो तकलीफ भी ऐन इनायत है। जब वो राहत में किरदार को भूल जाते हैं तो तकलीफ में उसे याद करते हैं। बस दोज़ख मोहब्बत है और काफिरों की मस्जिद है, इसलिए कि वहां खुदा को याद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कैद खाना में, मुसीबत में और दांतों के दर्द में। और जब तकलीफ आए तो गफलत का पर्दा चाक हो जाता है, खुदावंद ताला की हुजूरी के कायल हो जाते हैं और आहोजारी करते हैं कि या रब, या रहमान, या हक, या अल्लाह। सेहत हो जाती है, फिर गफलत का पर्दा सामने आ जाता है। कहता है मुझे खुदा नहीं मिलता, मैं उसे नहीं देखता, क्या ढूंढूं। ये क्या बात हुई कि तकलीफ के वक्त तूने उसे देख लिया और वो तुझे मिल गया। इस घड़ी तू उसे नहीं देखता। बस जब तू तकलीफ में उसे देखता है, तुझ पर तकलीफ मस्तूली कर देते हैं ताकि तू खुदा का जिक्र करता रहे। बस राहत में दोज़ख हुआ कि उसमें खुदा से गफलत रही और खुदा को याद न किया। दोज़ख में रात दिन जिक्र खुदा करता है। जब दुनिया, आसमान, जमीन, चांद, सूरज, सैयारों, नेक और बद इंसानों को इसलिए पैदा किया गया कि उसे याद करें, उसकी बंदगी बजा लाएं और तस्बीह करें। और जब काफिर राहत में ये नहीं करते और उनकी पैदाइश का मकसद ये है तो वो जहन्नुम में जाते हैं ताकि वो जिक्र करें। लेकिन मोमिनों को तकलीफ की हाजत नहीं है। ये राहत में इस तकलीफ से गाफिल नहीं है और इस तकलीफ को हमेशा मौजूद देखते हैं। जिस तरह एक अक्लमंद लड़के का पांव एक मर्तबा ही काठ में डालते तो वो काफी होता है और वो काठ को नहीं भूलता, लेकिन अहमक लड़का काठ को भूल जाता है, उसे हर लहजा काठ चाहिए। इसी तरह एक ज़ीरक घोड़े को एक ही दफा महमीज लगाना काफी है, इसे दूसरी मर्तबा उसकी हाजत नहीं होती। वो सवार को कई कोस ले जाता है और इस महमीज की नोक को नहीं भूलता, लेकिन बेवकूफ घोड़े को हर लहजा महमीज चबोने की जरूरत होती है। वो इंसान को उठाने के लायक नहीं होता, इस पर गोबर लादते हैं। शुनीदा मानिंदे दीदा। कान का किसी बात को मतवातर सुनना देखने का काम देता है और रुयत का हुक्म रखता है। जैसे तू अपने माँ बाप से पैदा हुआ, तुझे कहते हैं कि तू उनसे पैदा हुआ, तूने अपनी आंख से नहीं देखा कि उनसे पैदा हुआ, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा कहने से तेरे नजदीक हकीकत बन गई। अब अगर कहें कि तू उनसे पैदा नहीं हुआ तो तू नहीं सुनता। और इसी तरह खलकत से तूने तवातर के साथ बहुत सुना कि बगदाद और मक्का 2 शहर मौजूद हैं। अगर कहीं वो नहीं है और कसम खाएं तो भी तू यकीन नहीं करेगा। बस हमने समझ लिया कि जब कान मतवातर कोई बात सुनते हैं तो वो देखने का हुक्म रखते हैं। इस तरह अजरुए जाहिर मतवातर गुफ्तगू को दीद का मर्तबा देते हैं। हो सकता है कि किसी शख्स की एक ही गुफ्तगू मतवातर का हुक्म रखे, क्योंकि दरअसल वो एक नहीं 100,000 है। बस उसकी एक गुफ्तगू 100,000 गुफ्तगू हुई और तुझे इस पर क्या ताज्जुब आता है। ये बादशाह जाहिरन तौर पर 100,000 हुक्म रखता है, अगरचे वो एक ही है। अगर 100,000 आदमी कहें तो भी यकीन में इजाफा नहीं होगा। अगर वो खुद कहे तो इजाफा हो सकता है। बस जब जाहिर में ये है तो आलम अरवाह में इससे बेहतर है। खा तू सारी दुनिया में फिरा, जब तू उसकी खातिर नहीं फिरा तो तुझे दुनिया के गिर्द दूसरी मर्तबा फिरना चाहिए कि ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि जमीन पर चलो फिरो, फिर देखो कि जुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। सूरह इनाम। वो सैर मेरी खातिर न थी बल्कि लहसुन और प्याज की खातिर थी। जब तू उसकी खातिर नहीं घूमा तो अपनी किसी गर्ज के लिए घूमा। वो गर्ज तेरा हिजाब बन गई। उसने तुझे ना छोड़ा कि तू मुझे देखता। जिस तरह बाजार में तू किसी को कोशिश करके बुलाता है तो किसी दूसरे को तू नहीं देखता, और अगर देखता भी है तो खल्क को अपने ख्याल ही में देखता है। या किसी किताब में तुझे एक मसला के हल की तलाश होती है, चूंकि तेरे कान, आंखें और होश उस एक मसला से बरे होते हैं तो इससे फर्क उल्टता जाता है और किसी चीज को नहीं देखता। बस जब तेरी नीयत और मकसद उसके अलावा रहा तो जहां भी फिरा होगा उस मकसद से फिर रहा होगा, उसे नहीं देखा होगा। फकीह की तारीफ।
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाना में एक शख्स था। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, यहाँ तक कि उसका बेटा उसे दूध देता और बच्चों की तरह उसकी परवरिश करता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी बेटी से फरमाया कि इस जमाना में बाप पर जो तू हक रखती है वो हक कोई बेटा नहीं रखता। उसने जवाब दिया, आप सच फरमाते हैं, लेकिन मुझ में और मेरे बाप में फर्क है। मैं उसकी खिदमत में कोताही नहीं करती, लेकिन बाप जब मेरी खिदमत करता था तो वो कांपता था कि मुझे कोई दुख ना हो। अब मैं बाप की खिदमत करती हूँ तो दिन रात दुआ मांगती हूँ और खुदा से उसकी मौत चाहती हूँ ताकि उसकी ज़हमत मुझसे मुनक़ता हो। मैं बाप की खिदमत तो करती हूँ, मगर वो उसका मुझ पर कांपना कहाँ से लाऊं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये औरत उमर से बढ़कर फकीह है, यानी कि मैंने जाहिर पर हुक्म किया और तूने उसका मगज कह दिया। फकीह वो होता है जो किसी चीज के मगज से मुतला हो, उसकी हकीकत को जानता हो। अफसोस उमर पर कि वो हकीकत और राज से वाकिफ न हुआ। बेशक सहाबा की सीरत ऐसी थी कि वो अपने आप को शिकस्त देते और दूसरों की मदह करते। लरजने वालों की खिदमत करो। बहुत से लोग हैं जिन्हें हुजूरी की ताकत नहीं होती। गैबत में उनका हाल अच्छा रहता है, जैसे दिन की तमाम रोशनी आफताब से है। अगर कोई आदमी सारा दिन कर से आफताब ही पर नजर रखे तो उससे कोई काम ना हो और उसकी आंख खीरा हो जाए। इसके लिए यही बेहतर है कि किसी काम में लगा रहे, और ये नजर उससे कर से आफताब की गैबत है। और इसी तरह बीमार के सामने अच्छे खानों का जिक्र उसके हुसूल कुव्वत व इश्तिहा के लिए ही जानावर है। अलबत्ता इन खानों की मौजूदगी से उसका नुकसान है। बस मालूम हुआ कि खुदा की तलब में लर्जा और इश्क चाहिए। जिस किसी को लर्जा ना हो उस पर लर्जने वालों की खिदमत करना वाजिब है। कोई फल दरख्त के तने पर नहीं लगता, इसलिए कि तना लर्जता नहीं। शाखों के सिरे लर्जा हैं, इसलिए उन्हें फल लगते हैं। तना शाखों के सरों को तकवीयत देता है और फलों की वजह से वो कुल्हाड़े के जख्म से खुद भी महफूज रहता है। और जब दरख्त के तने का लर्जा कुल्हाड़े की वजह से होगा तो उसका ना लर्जना और सुकून पजीर रहना ही बेहतर है, ताकि वो लर्जने वालों की खिदमत करता रहे। कमाल पर ज्यादती नुकसान है, इसलिए कि मोइनुद्दीन है, ऐनुद्दीन नहीं। ये मीम की ज्यादती की वजह से है। कमाल पर ज्यादती नुकसान है। मीम की वो ज्यादती नुकसान है जिस तरह 6 उंगलियां हैं, अगरचे ये ज्यादा हैं मगर नुकसान होता है। आहद कमाल है और अहमद अभी मुकामे कमाल पर नहीं है। जब मीम उठ जाए तो वो बकुल्ली कमाल हो जाता है, यानी खुदा सब पर मुहीत है। इस पर तू जो भी ज्यादती करेगा नुकसान होगा। ये एक का अदद तमाम अदाद के साथ है और इसके बगैर कोई अदद मुमकिन नहीं है। सैयद बुरहानुद्दीन ने एक बड़े फायदा की बात फरमाई। उनकी बात के दरमियान ही में एक बेवकूफ ने कहा कि हमें ऐसी बात चाहिए जो बेमिसाल हो। फरमाया तू बेमिसाल है, ताकि तू बेमिसाल बात सुने। आखिर तू खुद भी तो एक मिसाल है। तू ये नहीं है, ये तेरा जिस्म तेरा साया है। जब कोई मर जाता है तो कहते हैं कि फलां गुजर गया। अगर वो ये था तो कहां गया? बस मालूम हुआ कि तेरा जाहिर तेरे बातिन की मिसाल है, ताकि तेरे जाहिर से बातिन पर इस्तदलाल करें। हर चीज जो नजर आती है कसाफत है। जैसे सांस गर्मा में महसूस नहीं होता, अलबत्ता जब सरमा हो कसाफत से सांस नजर आता है। नबी अलैहिस्सलाम पर वाजिब है कि वो कुव्वत हक का इजहार करे और दावत से तंबीह करे। अलबत्ता उस पर वाजिब नहीं कि वो किसी को इस्तेदाद के मुकाम तक पहुंचाए, इसलिए कि ये खुदा का काम है। और खुदा की 2 सिफतें हैं, कहर और लुत्फ। अंबिया इन दोनों के मजहर हैं। जो कायल हो जाते हैं अपने आप को अंबिया में देखते हैं और अपनी आवाज उससे सुनते हैं और अपनी आवाज उससे सुनते हैं और अपनी बू उससे पाते हैं। कोई शख्स अपने आप का मुनकर नहीं होता। इसी वजह से अंबिया उम्मत से कहते हैं कि हम तुम हैं और तुम हम हो, हम में बेगान की नहीं है।
जब कोई कहता है कि ये मेरा हाथ है तो इससे कोई गवाह नहीं मांगते, इसलिए कि वो जुड़ा हुआ जुज्व है। लेकिन अगर वो कहे कि फला मेरा बेटा है तो उससे गवाह मांगते हैं, इसलिए कि वो जुज्वे मुनफसिल है। असल चीज महबूब की रजा है। बाज लोगों का कहना है कि मोहब्बत खिदमत का मौजिब है, और ये ऐसा नहीं है, बल्कि महबूब का मिलाने तबा खिदमत का मुक्तजी है। और अगर महबूब चाहे कि मुहिब खिदमत में मशगूल हो तो मुहिब पर खिदमत भी लाजिम है, और अगर महबूब ना चाहे तो उसके लिए तर्क खिदमत लाजिम है। तर्क खिदमत मोहब्बत के मनाफी नहीं है। आखिर अगर वो खिदमत नहीं करता तो उसमें वो मोहब्बत खिदमत करती है, बल्कि असल चीज मोहब्बत है और खिदमत मोहब्बत की फरा है। अगर आस्तीन हरकत करती है तो वो हरकत हाथ की वजह से है। बेशक ये जरूरी नहीं कि अगर हाथ हरकत करे तो आस्तीन भी हरकत में आए। मसलन एक आदमी बहुत बड़ा जुब्बा पहनता है, इतना बड़ा कि वो उसमें छुप जाता है। वो जुब्बा उस वक्त तक नहीं हिलता जब तक वो आदमी हरकत ना करे। मुमकिन नहीं कि उस जुब्बा को हरकत हो और उस शख्स को हरकत ना हो। बाज लोगों ने खुद जुब्बा को आदमी समझ लिया और आस्तीन को हाथ ख्याल कर लिया है। मौजा और शलवार के पांचा पर पाँव का गुमान कर लिया है। ये हाथ और पाँव दूसरे हाथ पाँव की आस्तीन और मौजा हैं। कहा करते हैं फला आदमी फला शख्स का जेर दस्त है और फला का हाथ इतने आदमियों तक पहुंचता है और फला की बात मौसर है। इससे ये हाथ और पाँव मुराद नहीं होते। माँ बाप एक जरिया है। वो अमीर आया, उसने हमें जमा किया और खुद चला गया। जैसे जंबूर ने शहद से मोम इकट्ठी की और खुद उड़ गई, इसलिए कि उसका वजूद शर्त था, उसकी बका शर्त नहीं है। हमारी माएं और हमारे बाप जंबूर की मिसल हैं कि तालिब को मतलूब से मिला देते हैं और आशिक और माशूक को इकट्ठे कर देते हैं और खुद अचानक परवाज कर जाते हैं। खुदावन ताला इन्हें मोम और शहद जमा करने का जरिया बनाता है। ये खुद उड़ जाते हैं और मोम और शहद बाकी रह जाते हैं और बागबान रह जाता है। ये खुद बाग से बाहर नहीं जाते। ये ऐसा बाग नहीं है जिससे बाहर जाया जा सके। हाँ, बाग के एक गोशा से दूसरे गोशा में चले जाते हैं। हमारा जिस्म एक मठोर की तरह है, इसमें खुदा के इश्क का मोम और शहद जंबूर यानी माएं और बाप अगरचे जरिया हैं, लेकिन वो तरबियत भी बागबान ही से पाते हैं और मठोर को बागबान बनाता है। इन जंबूरों को खुदा ताला ने दूसरी सूरत दी है। इस वक्त जबकि ये काम करते हैं, इनका लिबास दूसरा होता है। इस काम के मुताबिक जब इस आलम में जाते हैं तो लिबास तब्दील कर लेते हैं, इसलिए कि वहां इन्हें दूसरा काम करना होता है। लेकिन दरअसल वो शख्स वही है जो पहले था। जैसा मसलन कोई शख्स जंग पर जाए तो वो जंगी लिबास पहन लेता है, हथियार बांधता है और खुद सर पर रखता है, इसलिए कि जंग का वक्त है। लेकिन जब वो महफिल में आता है तो उसको बाहर ही छोड़ आता है, क्योंकि अब वो दूसरे काम में मशगूल होगा। लेकिन शख्स वही होता है, चूंकि तूने उसे उस लिबास में देखा होगा। जब तू उसे याद करेगा तो वो उसी शक्ल और उसी लिबास में तेरे तसव्वुर में आएगा, खा उसने सैकड़ों लिबास तब्दील कर लिए हों। खौफ में एक हिकमत है। एक शख्स की अंगूठी एक जगह गुम हो गई। अगरचे अंगूठी को वहां से चोर ले गए, वो शख्स उसी जगह के गिर्द घूमता रहा कि मैंने जहां अंगूठी गुम की है। इसी तरह साहिब ताजियत कब्र के गिर्द घूमता है। वो बेखबर होकर मिट्टी के ढेर का तवाफ करता और उसे चूमता है, यानी कि वो अंगूठी मैंने यहीं गुम की है, इसे यहां कैसे छोड़ दूं। खुदावन ताला ने इतनी कारीगरी की और अज़हार कुदरत फरमाया ताकि उसने एक दिन दो रूहों को एक कालबद में हिकमत इलाही के लिए एक जगह कर दिया। आदमी अगर जिस्म के साथ लहद में एक लम्हा भी बैठे तो खौफ यह है कि वो दीवाना हो जाए। बस वो किस तरह सूरत के दाम और कालिब के खंदक से कूदे, वहां कैसे रहे। खुदावन ताला ने इन्हीं दिलों की तखवीफ और तखवीफ की तजदीद के लिए
ایک نشان بنایا ہے تاکہ قبر کی وحشت اور خاک کے تیرا سے انسان کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ جیسے راستہ میں جب قافلہ کو کسی جگہ لوٹ لیتے ہیں تو لوٹنے والے نشان کے لیے 2-3 پتھر اوپر تلے وہاں رکھ دیتے ہیں کہ یہ خطرہ کا مقام ہے۔ یہ قبریں بھی اسی طرح خطرہ کی جگہ کے لیے نشانات محسوس ہیں۔ وہ خوف ان میں اثر کرتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ عمل میں آئے۔ مثلا اگر کہیں کہ فلاں آدمی تجھ سے ڈرتا ہے تو بغیر اس کے کہ اس سے کوئی فعل صادر ہو تجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے برعکس کہہ دیں کہ فلاں آدمی تجھ سے بالکل نہیں ڈرتا اور اس کے دل میں تیری ہیبت نہیں، تو تنہا یہی بات تیرے دل میں اس کے متعلق غصہ پیدا کر دیتی ہے۔ یہ بھاگنا خوف کا اثر ہے۔ تمام عالم بھاگتا ہے، البتہ ہر کسی کا بھاگنا اس کے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان کے لیے اور قسم کا، نباتات کے لیے اور قسم کا، اور روح کے لیے اور قسم کا۔ روح کا دوڑنا بغیر قدم اور نقصان کے ہے۔ کچے انگور کو دیکھو کہ اس نے کتنی تگودو کی، جب کہیں جا کر وہ پختہ انگور کے مقام تک پہنچا اور اس میں مٹھاس پیدا ہوئی۔ فی الحال اس کی پہلی منزل تھی، وہاں تک پہنچ گیا، البتہ وہ دوڑتا نظر نہیں آتا اور محسوس نہیں ہوتا۔ ہاں، جب وہ اس مقام تک پہنچ جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بہت دوڑا ہے۔ جب جا کر وہاں پہنچتا ہے، جیسے کوئی شخص پانی میں اترا اور کسی نے اس کا اترنا نہ دیکھا۔ جب اس نے اچانک پانی سے سر باہر نکالا تو معلوم ہوا کہ وہ پانی میں اترا تھا کہ وہ یہاں پہنچ گیا۔ صحبت کا اثر۔ دوستوں کے دل کو دکھ ہے جو کسی دوائی سے دور نہیں ہوتا، نہ سونے سے، نہ چلنے پھرنے سے، اور نہ کھانے سے۔ اس کا علاج صرف دیدار دوست ہے۔ دوست کا دیدار بیماری سے شفا ہے۔ یہ اس حد تک درست ہے، اگر کوئی منافق مومنوں میں آ بیٹھے تو ان کی تاثیر صحبت سے اسی لحظہ مومن ہو جاتا ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ کا قول ہے، یہ منافقین جب مومنین سے ملتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں ہم مومن ہیں۔ سورہ بقرہ۔ جب منافق پر یہ عمل ہوتا ہے تو غور کر کہ جب مومن کے پاس بیٹھتا ہے تو مومن کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ بساط کیا ہے؟ وہ پشم ہی سے بنی ہے۔ پشم ایک عقل مند کے قرب سے ایسی منقش بساط بن گئی، اور یہ مکان دراصل کیا ہے؟ یہ محض خاک ہے۔ خاک عقل مند کے قرب سے ایسا اچھا مکان بن گئی۔ عقل مند کی صحبت نے جمادات پر ایسا اثر کیا تو ایک مومن کی صحبت مومن پر کیا کیا کرے گی۔ نفس جزوی اور عقل مختصر کی صحبت سے جمادات اس مرتبہ کو پہنچ گئی، اور یہ سب عقل جزوی کا سایہ ہے۔ سایہ سے جسم قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اب یہیں سے قیاس کر کتنی عقل اور دانش چاہیے کہ اس سے یہ آسمان، چاند، سورج اور زمین کے 7 طبقے پیدا ہوں، اور زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے یہ سب موجودات عقل کل کا سایہ ہے۔ عقل جزوی کا سایہ اس کے سایہ جسم سے مناسبت رکھتا ہے، اور عقل کلی کا سایہ جو موجودات ہے اس سے مناسبت رکھتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کے اولیاء نے ان آسمانوں کے علاوہ دوسرے آسمانوں کا بھی مشاہدہ کیا ہے، کیونکہ یہ آسمان ان کی نظر میں نہیں جچتے اور ان کے سامنے یہ حقیر معلوم ہوتے ہیں۔ وہ انہیں پاؤں تلے روند کر گزر جاتے ہیں۔ ترجمہ شعر۔ جان کی ولایت میں ایسے آسمان ہیں جو دنیا والے آسمان کے کار فرما ہیں۔ بے خبری ایک اضافی بات ہے، اور کیا ہی تعجب ہوتا ہے کہ انسانوں میں سے ایک انسان یہ خصوصیت حاصل کر لیتا ہے کہ اس کے پاؤں 7ویں آسمان پر پڑتے ہیں۔ کیا ہم سب کے سب خاک کی صنف سے نہیں ہیں؟ خداوند تعالیٰ نے ہم میں ایک ایسی قوت رکھ دی ہے جس کی بدولت ہم اپنی نوع سے ممتاز ہو گئے ہیں، اور ہم اس کے متصرف ہو گئے ہیں، اور وہ ہماری متصرف ہو گئی ہے تاکہ ہم جس طرح چاہیں اس میں تصرف کر لیں۔ کبھی ہم اسے اوپر لے جاتے ہیں اور کبھی نیچے رکھتے ہیں، کبھی ہم اس سے گھر بناتے ہیں، کبھی کاسا اور کبھی کوزہ بنا لیتے ہیں، کبھی اسے ہم لمبا کرتے ہیں، کبھی ہم اسے چھوٹا کرتے ہیں،
अगरचे पहले हम वही खाक थे और खाक की नौ से थे, लेकिन खुदावंद ताला ने हमें इस कुव्वत से मुमताज कर दिया। इस तरह हम सब एक जिन्स हैं। हम में से अगर बाज को मुमताज कर दिया तो उसमें तज्जुब क्या, क्योंकि उनसे हमारी वही निस्बत है जो जमादात की है। वो हम पर तसर्रुफ रखते हैं और हम उनके तसर्रुफ से बेखबर होते हैं और वो हमसे बाखबर होते हैं। ये जो हम बेखबर कहते हैं, हम बेखबरी बहस नहीं चाहते, बल्कि एक चीज के मुताल्लिक खबर दूसरी चीज के मुताल्लिक बेखबरी है। खाक भी इस जमादियत से बाखबर है जो खुदा ने उसे दी है, लेकिन अगर वो बेखबर होती तो पानी को क्यों कबूल करती और हर दाना की दायागिरी और परवरिश कैसे करती। कोई शख्स जब किसी काम में जद्दोजहद कर रहा हो और हर वक्त उसी खिदमत पर हो, उस काम में उसकी बेदारी उसके अलावा दूसरे हर काम से उसकी बेखबरी होती है। हम इस गफलत से गफलत कुल्ली नहीं चाहते थे कि बिल्ली को पकड़े। उसे पकड़ सकना किसी तरह मुमकिन ना हुआ। एक दिन वो बिल्ली किसी मुर्ग के शिकार में मसरूफ थी। मुर्गी के शिकार में वो बाकी दुनिया से गाफिल हो गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। बस दुनिया के काम में कुल्ली तौर पर मसरूफ नहीं होना चाहिए। दुनिया के कामों को सहल ख्याल करना चाहिए और उनके कैदी नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये रंजीदा हो जाए और वो नाराज हो जाए। चाहिए कि गंज खराब ना हो। अगर ये नाराज हो जाए तो वो उन्हें लौटा देता है, लेकिन अगर वो नाराज हो जाए तो खुदा बचाए, उसे कौन लौटाएगा। मसलन अगर तेरे पास हर किस्म का सामान हो और तू गर्क होने लगे तो गर्काब होते वक्त तू किस चीज पर हाथ मारेगा। अगरचे तू सब मोती ही कब्जा में करना चाहेगा, लेकिन यकीनी बात यही है कि तू सबसे कीमती खजाना हाथ में रखेगा, ताकि एक ही मोती और लाल के एक ही टुकड़े से 1000 आराइश की जा सके। एक दरख्त को शीरीं फल लगता है, अगरचे वो फल उस दरख्त का हिस्सा होता है, लेकिन खुदावंद ताला उस जुज़्व को कुल से बरगजीदा बनाकर मुमताज कर देता है। खुदावंद ताला ने फल में हलावत डाल दी जो बाकी दरख्त को नसीब ना हुई। इस हलावत की वजह से उस जुज़्व ने उस कुल पर फौकियत पाई और दरख्त का मगज और मकसूद ठहरा। खुदावंद ताला का कौल है कि उन मुनकरों को उसमें हैरानी है कि उन्हीं में से एक शख्स डराने वाला उनके पास आया। सूरह काफ। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।